Are you able to see the screen? Yes. Yes. Yes, ma'am. So I'm just opening this front page on this side so that you are able to see in your book what we are doing, right? And you don't find later problem to correlate the things. Okay. So yesterday we have seen, कहीं पे भी आपको लगे आपको डाउट आ रहा है, I'm moving very slowly, कहीं पे भी लगे आपको डाउट आ रहा है, you can stop me then and there and you can ask your doubt. Is it fine, बच्चे, all of you? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So yesterday we have seen that the general equation of straight line is this. And then we have seen, so this is the equation of the straight line. So before I move to the joint equation, you see, जब हम बोलते हैं कि कोई भी, this is say suppose I take this equation as 2x plus 3y minus 5 is equal to 0. तो जब मैं बोल रही हूँ कि 1 1, so lies on this line, lies on, say this line is say 1, lies on 1. So इसका मतलब क्या हुआ? 1 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. So just a reminder that जब भी हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो the first coordinate is x and the second coordinate is y. यहाँ पे x की वैल्यू इज 1, y की वैल्यू इज 1 एंड वी आर ऑल एबल टू सी, अगर मैं अपनी ऊपर लाइन में x1 और y1 पुट करूं तो मेरी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है, ये पॉइंट करता है. सो अगर आप देखो, इफ आई हैव से one line, so if I have say one line ax plus by, or let me take just one example. So let me take one more line, so x plus y minus 2 is equal to 0. Right? So if you see, if I combine these two lines, say you see 2x plus 3y minus 5, and let me multiply the other line also, x plus y minus 2 is equal to 0. तो यहाँ पे अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, 1 1 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर आप देखो, ये जो मेरी इक्वेशन आई है, ये जो मैंने कंबाइन करके लिखी है, लेट मी नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3, लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो अगर आप देखो, इक्वेशन नंबर 1 को भी 1 1 सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन नंबर 2 को भी 1 1 सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन नंबर 3 को भी 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है. तो यहाँ से एक चीज, बिकॉज अगर आप यहाँ पे 1 1 पुट करते हो तो दिस विल बिकम 0, सो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बिकम 0. तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि जो पॉइंट्स इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करते हैं, सो जो पॉइंट्स, द पॉइंट्स which satisfy two and 1 will satisfy 3. So obviously जो point of intersection है, जो जो points दोनों equations को satisfy करते हैं, so that point will be the point of intersection. तो point of intersection obviously third equation पे lie करेगा. But यहाँ पे एक और observation भी अगर आप देखो, say suppose I take one point, say I take one point, say let's satisfy this equation. So let me just consider first equation. So यहाँ से क्या आ रहा है? 2x is equal to 5 minus 3y. So let me take y as 0. Let me take y as 0. So if I take y as 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई, मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2.5. So now what you see, 2.5 and 0. So this you can check now, 2.5 and 0. See, my point is 2.5 and 0. So 2.5 and 0 first equation को satisfy करता है. So let us put 2.5 and 0 in third equation. So you see, जैसे ही आप 2.5 और 0 put करोगे, you see this portion will become 0, and we know जब आप 0 किसी भी number से multiply करेगा तो answer 0 हो जाएगा. So 2.5 will satisfy, 2.5 and 0 will satisfy third equation also. So what I mean to say is कि जो point फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मींस वो थर्ड की इक्वेशन पे लाई करेंगे.
एंड सिमिलरली जो पॉइंट सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो अब देखो 2.5 और 0 फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करते हैं, बट सेकेंड इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं करते. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन पे लाई कर रहा है वो थर्ड इक्वेशन पे लाई करेगा, और जो भी पॉइंट सेकेंड इक्वेशन पे लाई करता है वो थर्ड इक्वेशन पे लाई करेगा. सो दिस इज द रीजन. यहाँ पे जो हमने इक्वेशन, मैंने आपको ये जो इक्वेशन है, दिस इज नॉट नोन एज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, rather this equation is known as joint equations of line. Beta, is it clear? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. That is the reason this is known as joint equation, because जो points first line की equation को satisfy करते हैं वो points joint equation को भी satisfy करेंगे, and ऐसे ही जो point second equation को satisfy करते हैं वो भी joint equation को satisfy करेंगे. So now let me start. So if you have one straight line, right? Say you have AX plus by plus c, and you have another straight line, say a dash x. I am using the same notation which your book is using so that there is no confusion, c dash, right? So you multiply these two equations and put it equal to 0, right? So this equation is known as the joint equation of pair of straight lines given by two lines. कौन सी lines? ax plus by plus c is equal to 0, and second line is a dash x plus b dash y plus c dash. राइट? सो अब यहाँ से एक चीज क्लियर है, अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप लेट मी ओपन दिस ब्रैकेट, लेट मी मल्टीप्लाई, सो व्हाट आई विल गेट, a dash x स्क्वायर, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, फिर क्या आ जाएगा, ए बी डैश एक्स वाई प्लस ए सी डैश एक्स, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, बी बी डैश वाई स्क्वायर प्लस बी ए डैश एक्स वाई प्लस बी सी डैश वाई, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, सी ए डैश एक्स प्लस CB dash y plus CC dash is equal to 0. Is it fine, बच्चे? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Right. So if I just combine the terms, so this is what, a dash x square plus bb dash y square plus, राइट, एक्स वाई की टर्म कौन सी बनेगी, ए बी डैश प्लस ए डैश एक्स वाई प्लस एक्स की टर्म्स कौन सी बनेगी, ए सी डैश प्लस सी ए डैश एक्स, वाई की टर्म्स कौन सी थी, एक तो टर्म थी बी सी डैश वाली और एक टर्म थी सी बी डैश वाली, सी बी डैश वाई, एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म इज व्हाट, सी सी डैश इज इक्वल टू. So if you are able to see here, so you see this equation. Beta, is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Right. So just to, for, because I don't want to remember a dash b b dash, वो तो हमने starting में general लिया था. So let us just replace a dash by capital A. Let us just replace a dash by capital A. So this is ax square, bb dash by capital B. So this is by square. Then ab. So let me just write here. So my a is nothing. हमने सिर्फ नाम change कर दिया. a dash ना बोल के हम उसको capital A बोल रहे हैं. bb dash को हम बोल रहे हैं capital B. Similarly a b dash plus a dash b, इसको हम बोलेंगे 2h. Because things will become easy, you will see. Then उसके बाद this is h, then ac dash plus ca dash, इसको हम बोलेंगे 2g, and then bc dash plus cb dash, इसको हम बोलेंगे 2f, and last cc dash, the constant term, let me call it as capital C. So you see what this equation will become, ax square plus by square plus
2hxy. So you see, h is nothing but the coefficient of xy. So h is what h of xy के साथ आता है plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0. So if you see from here, what is the degree of this equation? ये equation कितने degree की equation है? Second degree. Second degree. 2 डिग्री. तो हम इस इक्वेशन को क्या नाम दिया था हमने? व्हाट वाज दिस इक्वेशन? हमने जब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया था उसको हमने क्या नाम दिया था? Joint equation. Joint Equation. Yes, so you see, so you can see from here in your book, so the joint equation of a pair of straight lines is a second degree equation in x and y. Beta, is it clear? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं किसी को? So this is the only reason I am opening this book here, so that we are able to see parallelly in your book what we are doing. Right? So the joint equation, so from here now you will remember this. So joint equation की डिग्री हमारी क्या बनी है? It's equation of degree 2. हमें एक चीज हमें ये याद रखनी है, और जनरल इक्वेशन हमने याद रखनी है. जनरल इक्वेशन क्या बनी है हमारी? ax square plus by square plus 2gx plus 2f ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So this equation you will remember because we will be using in the questions. A, B, C क्या है? That you need not remember, just this one. ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ से एक चीज दिस वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने ये देखा है कि जब हम दो लाइंस की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी मे कॉल इट व्हाट यू कॉल इट एज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन दे दूं, से आई गिव यू दिस इक्वेशन x square plus y square is equal to 4. So what is the degree of this equation? 2. This is an equation of second degree. But can you tell me from your previous experience, छोटी क्लासेस में ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? थोड़ा सा याद करो. बोलो बोलो. गलत बोलो. सर्कल. यस. यू सी दिस इज, हम डिटेल में करेंगे. वेरी गुड, आपने ये रिमेंबर रखा. सो यू सी दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 2. So you see this is an equation of second degree, but this is not a straight line. So ऐसा नहीं है कि कोई भी equation of second degree की देखो तो अब आप ये बोल दो कि वो straight line है. No, this is not a straight line. हाँ, pair of straight line equation will be of second degree, but every equation of second degree does not represent pair of straight line. बेटा यहाँ तक clear है सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So अब हमारा काम यही है. In this chapter we will be just looking at what is the condition that my straight line, my given equation of second degree will represent a straight line. We will now do all this only. Just give me 1 second. Okay. So अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको दो लाइंस दे दूं, से I give you this line, say one line is x plus y plus 3 is equal to 0, another line is y plus y is equal to 3. So can you tell me what will be the joint equation of these pair of straight lines? What will be the joint equation? कैसे निकालेंगे हम बेटा? दोनों को प्रोडक्ट फाइंड करके. दोनों का प्रोडक्ट. बट आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है. अगर आप देखो फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक है, x plus y plus 3. तो सेकंड इक्वेशन में उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सी साइड पे है? राइट हैंड साइड. तो उसको आप इस तरफ लेके आओगे. सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ब्रिंग टू लेफ्ट हैंड साइड. सो y minus 3 is equal to 0. बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. Right. So if you see now let me multiply. So what you will get, so this is xy minus 3x plus, so
पहले मैंने x वाली टर्म को इनसे मल्टीप्लाई किया, सो x इंटू वाई, सो x इंटू 3, सो xy माइनस 3x। फिर मैंने क्या किया, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, मैं y वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y, और फिर मैं क्या करूंगी, थर्ड लास्ट टर्म को, सो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस। सो व्हाट इज द इक्वेशन, सो 3y कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट इक्वेशन, y स्क्वायर so y square plus xy minus 3x minus 9 is equal to 0. बेटा is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, एक मिनट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं what is the value of a in this equation? What is the value of a in this equation? a क्या था, a किसका कोएफिशिएंट था, x का तो इस इक्वेशन में तो x स्क्वायर नहीं आ रहा, तो a will be 0. 0। बेटा क्लियर है सबको? जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें Yes, ma'am. what will be b in Yes, this ma'am. equation? 1. 1 Very good. What will be h in this equation? 1. आराम it's 1 नहीं गलत बोल रहे 2 हो। देखो अगर आपको याद हो हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर, मैं दोबारा लिख रही हूँ, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो xy का कोफिशिएंट 2h है, xy का कोफिशिएंट 2h है, सो xy के साथ जो नंबर है वो इस इक्वेशन में 2h है और इस इक्वेशन में कितना है, 1 है, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2. या तो आप ऐसे याद रख लो या आप ऐसे याद रख लो कि h इज द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ xy। सिमिलरली कैन यू टेल मी g की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, -3/2. -1/3 नहीं आराम, 3/2। -3/2. तो अगर आप देखो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2g और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -3, साइन आपने साथ में ही लेना है, तो यहाँ से क्या आ गया, g की वैल्यू आ गई -3। Again, there is no term of y, so f will be 0 and the constant, yes, the constant term here is c, here is कितनी आ जाएगी, -9 बेटा किसी को एनीबडी इन द क्लास जिसको ये ABC निकालने नहीं आया है, कल अभी जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, अगर नहीं समझ में आएगा, किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी अगेन। क्लियर है बेटा सबको? मैम एच मैम आगे से एक बार फिर से समझा दो। दोबारा समझो। Let us take one more example. Let us take these two lines. So can you tell me what will be the joint equation of these two lines? x minus y equals to 1. देखो -1. हाँ, तो इसको पहले इधर लेके आओगे, देखो पहले हमेशा ऐसे, पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, सो योर कांस्टेंट टर्म विल बी विद x, तो जब 3 को उधर लेके आओगे तो -3 हो जाएगा, सो x - 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y, अगेन कांस्टेंट टर्म उधर है, -1 इज इक्वल टू 0। सो राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 होना चाहिए। अब जो इक्वेशंस बनी है आपकी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x - 3 इंटू x - y -1। गर्ल्स क्लियर? Yes, ma'am. Right, so Yes, now ma'am. let us multiply, so what you will get, this is x square, पहले x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरी टर्म के साथ, एक पहले आ जाएगा x स्क्वायर, फिर जब x को मल्टीप्लाई करोगे -y के साथ तो -xy, फिर -x, फिर क्या आ जाएगा -3x प्लस 3y, अब मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, so -3x, अगेन माइनस माइनस विल बिकम, so प्लस 3y, so प्लस 3 इज इक्वल टू 0। So the final equation is, so that is x square minus xy
x की एक टर्म यहाँ पड़ी है, -3x यहाँ पड़ी है, दोनों माइनस साइन है तो ऐड हो जाएगी, तो -4x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। गर्ल्स यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. we know joint equation is just for your reference. Let us write the standard equation. So ax square plus by square, yes, plus 2hxy 2gx, मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, plus 2fy plus c is equal to 0. गर्ल्स क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। सो अगर आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, दूसरी इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a is 1। पहली इक्वेशन में y स्क्वायर की टर्म है ही नहीं है, दूसरी इक्वेशन में y स्क्वायर के साथ आ रहा है b, तो कोएफिशिएंट मींस जो उसके साथ आ रहा है, तो y स्क्वायर के साथ आ रहा है b, सो b is 0। 0. फर्स्ट इक्वेशन में xy के साथ आ रहा है -1, साइन साथ में लोगे, सेकेंड इक्वेशन में xy के साथ आ रहा है 2h, तो यहाँ से h कितना आ गया, -1 -1. यस। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ आ रहा है -4 और नीचे आ रहा है 2g, तो यहाँ से g -2. -2 अगेन फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ आ रहा है 3 और y के साथ नीचे आ रहा है 2f, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2. 3/2. और लास्ट कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशंस में कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मैं ना आपको जस्ट एक शॉर्टकट दे रही हूँ, इफ यू वांट यू कैन यूज दैट शॉर्टकट आल्सो, क्वेश्चंस में जल्दी हो जाता है। अगर आप देखो, आपने इतना दिमाग में रखना है, h इज व्हाट, h is change the color, so h is half the coefficient of xy, बिकॉज हमें पता है 2h होता है तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो कोएफिशिएंट ऑफ xy है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सो इफ यू सी इन दिस इक्वेशन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, -1 है ना, -1 साइन आप साथ में लोगे तो ऑब्वियसली h कितना हो जाएगा, -1 को 2 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। Similarly, g is what? G is half the coefficient of x. G is half the coefficient of x. तो x का coefficient कितना है, -4, तो -4 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, -2। And last f is what? F is half the coefficient of y. So y का coefficient कितना है, 3, so 3 को 2 से डिवाइड किया तो 3/2। बेटा, is it clear? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. Okay. So what I'll do, I'll stop here. I'll give you one work. All of you will find the joint equation of these two lines. Y is equal to 5, x minus y, yeah, x is equal to y plus 3. These are two lines, 1 and 2. So you will find the joint equation of these two lines, and you will find a, b, c, f, g, h and the constant term in the joint equation. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'll stop for today. So any doubt, beta? Is the speed fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरे को ये बता दो कि are you able to get